Welcome to Cool Guru Academy. Now, in this session, we are going to go through the most important current affairs for your upcoming NDA and CDS examination. These current affairs also held an important relevance for your upcoming prelims and CAPFAC 23. Now, if you'll see the first question, it is related to the Naliyariya Divya Prabandham. So, what is Naliyariya Divya Prabandham? This is related to, it is a very important text. Of whom? This is an important text composed by Alvars. Now, what is Alvars and Nainars? If you'll go back at the times when Buddhism was flourishing, at that time, one person came to rescue it. What rescue? To rescue Hinduism. And that person is Adi Shankaracharya. आप जो चारों धाम देखते हो, he is the person behind that idea. He has also propagated a philosophy of Advait Vedanta. Okay? Where he started? He started in Kerala. Following him, the next person who started and propagated the Bhakti movement is Ramanujan. And which philosophy he propagated? He propagated the philosophy of Vishisht Advaita. Okay? And he is from Telangana region in Hyderabad. So, if you will see, where is the Statue of Equality? It is in Hyderabad, Telangana. And where is the Statue of Oneness is going to be there? It is near the Omkareshwar Dam, which is on Narmada River in Madhya Pradesh. I hope you have understood the first question, which was related to the importance of Bhakti movement, Statue of Equality, Statue of Oneness, important text related to the Alvars. Now, go through the next question. Next question is related to the largest solar power plant. And in which category? In the floating category. And what's his name? Its name is Ramagundam National Solar Power Plant. Ramagundam. And where is this Ramagundam plant? It is in Telangana. India has set up a very ambitious target of achieving 175 gigawatt of energy by 2022-23. So, this is one more important thing जो आपको याद रखनी है. Now, going through the next one is related to the country of Tajikistan. As you can see the map, these are the important nations and how they held relevance. These are the Central Asian countries. If you will see the Central Asian countries and the question is asked to you regarding which all countries share the border with Tajikistan. So from the color map, you can see it is Turkmenistan, no. It is Uzbekistan, yes. Kyrgyzstan, yes. So it is Uzbekistan and Kyrgyzstan. So answer is 2 and 4. Okay, so that is option number C. Done. Now go through the next question. Now next question is related to the direct and indirect tax. That is how government runs the show. That is how budget and everything works. So here you need to have a good knowledge about the revenue receipt, capital receipt, okay, revenue expenditure and capital expenditure, under which you will be going through the revenue receipt model. In revenue receipt, from where the revenue comes to the government. Okay, first one is direct tax model and another one is indirect tax. In indirect tax, the majority of the chunk comes from good and services tax, and that is through 101st Constitutional Amendment Act. And what it is? It is your GST. So it is a form of इनडायरेक्ट टैक्स. अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं इंडिया में, सो आंसर फॉर दिस इज होल पॉपुलेशन. छोटी से छोटी चॉकलेट भी खरीदते हो ना, उस पर भी जीएसटी लगता है. ठीक है. आर्टिकल 279 ने, यस, इसके अंदर आर्टिकल 279A के अंदर हमने बनाई थी जीएसटी काउंसिल, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट किसका रोल रहता है? यूनियन प्लस स्टेट्स का. कि ये लोग वोट करते हैं किसी भी चीज से कि किस चीज पे
जीएसटी बढ़ाना है कि नहीं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह पे जो बात चल रही थी, यू कैन इवन गो थ्रू द आर्टिकल्स की किस तरह से बात चल रही थी, एंड ऑल्सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट अर्न्स द मनी. सो दिस नंबर ऑलवेज फ्लक्चुएट्स. जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कॉर्पोरेशन टैक्स से हमारा 21% है एंड फ्रॉम जीएसटी इट इज 19%, बट यू नीड टू कीप चेकिंग दिस डेटा. Now see the next question. It is related to the National Human Rights Commission, NHRC. Now National Human Rights Commission is a statutory body. How a statutory body is formed? A bill is passed, then it becomes an act, then that body gets the power and it is called as a statutory body. Who all can become the president or chairman of National Human Rights Commission? The answer for this question is, earlier it was just the ex-Chief Justice of Supreme Court, but now any judge of Supreme Court can be its member. So obviously, so that judge will be the former one who has retired. Now go through the question. It can investigate any complaints related to the violation of human rights. Obviously, that is its statement. And there is one more thing related to it: suo motu. Suo motu is the power given to the authority by which it itself can take any case. सिंपल भाषा में बोलूं कि जैसे पुलिस के पास खुद के पास ताकत रहती पूछताछ वगैरह करने के लिए, उसी तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के खुद के पास पावर रहती है किसी भी केस को अपने पास ले आने की. जरूरी नहीं कि कोई जाके फाइल करे, ये खुद से भी कर सकती है. दैट इज कॉल्ड एज सुओ मोटो. दूसरा है कि इसका टेन्योर कितना था. अर्लियर टेन्योर वाज 5 years, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3 years और द एज ऑफ 70 years. या तो इंसान 70 साल का बन जाए या फिर 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए. ओके, अर्लियर ऑफ बोथ. री इलेक्शन का चांस है, यस. री अपॉइंटमेंट का चांस है. सो हियर यू हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. ओके, so I hope now you must not be having any kind of doubt related to this. Okay, now next question is related to Alluri Sitaraman Raju, a freedom fighter who waged a war against British authority. This person, he became a monk बन गए थे 18 साल की उम्र में. गॉड लाइक फिगर थे, ये ताकतवर पर्सनालिटी और जिस तरह से मोटिवेट करते थे. सो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज अ ट्राइबल मूवमेंट. ठीक है, सो ट्राइबल मूवमेंट है. तो ही बिकम अ मॉन्क एट द एज ऑफ 18, करेक्ट. ही रेवोल्यूशनरी वेज्ड अ कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनीज, करेक्ट. राइजिंग डिस्कंटेंट हुआ था, बट व्हाट इज द ईयर? द ईयर इज 1922 से 24 के बीच में. दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौरी चौरा कांड एंड आफ्टरवर्ड्स. तो उस टाइम पे साउथ में ये मूवमेंट चल रहा था. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर्ड नाउ. Okay, one more question that can come regarding this thing is where this Rampa rebellion was held. So it was held in which state? It was held in Andhra Pradesh. Okay. Again, next question is very important, which is given here. It is related to the laterite soil and also related to the Sarojini Vana. Who is this lady? बंजर जमीन पे इन्होंने पूरा फॉरेस्ट बना दिया था. In which area? In Eastern Ghats. उड़ीसा वाले रीजन में. नाउ सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, कैसी जमीन थी? लेटराइट सॉइल, बंजर ही है. लेटराइट इसका मतलब होता है एंड प्रोडक्ट. जब बहुत ज्यादा वेदरिंग हो जाती है सॉइल की, तब वो क्या बन जाती है? लेटराइट सॉइल. जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है, एक्सेसिव कोल्ड होती है, एकदम मास मूवमेंट होते हैं वेदरिंग के, उसके बाद बनती है लेटराइट सॉइल. अब लेटराइट सॉइल मोस्टली कौन से रीजन्स में देखते हो आप? मोस्टली वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में देखते हो, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, या फिर छोटे छोटे पैचेस में फील्ड्स ऑन ईस्टर्न घाट्स. नाउ लेटराइट सॉइल के बारे में एक अच्छी बात है, दिस सॉइल इज इवन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम करती है. नाउ ये सॉइल एक्चुअली ये क्या, इंडिया की सारी सॉइल दे आर डेफिसिट इन नाइट्रोजन. इसलिए आपने देखा होगा घर घर में यूरिया बिकता है. जिसको पता भी नहीं होगा वो भी बोलेगा यूरिया डाल दो. क्यों? बिकॉज हमारी सारी सॉइल्स नाइट्रोजन डेफिसिट है. इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डाल दो, इसलिए अभी क्या बन रहा है? नीम कोटेड यूरिया बना है.
उसके अंदर कंट्रोल मात्रा में चीजें डाल रहे हैं, दैट इज नीम कोटेड यूरिया। ओके, लेटेड सॉइल हैज हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन, सोडियम एंड कैल्शियम, गलत, इट हैज लो। सो हाई कंटेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट 90% इज फेरस मिनरल्स। व्हाट आर फेरस मिनरल्स? आयरन एंड अदर मेटल्स। ओके, सो पहला प्रश्न तो हो गया गलत। हाईली सुटेबल फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज प्रेजेंट अक्रॉस गंगा यमुना, नहीं भाई, गंगा यमुना ब्रेड के क्या खिलाफ क्या होगा, यहां पे तो होगा आपका अलुवियल सॉइल। व्हाट विल यू गेट? अलुवियल सॉइल। ओके, सो यू कैन मार्क द करेक्शन। सो इट इज ओनली, आई विल से बी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, सी द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी जान ली थी उस क्वेश्चन में, दैट इज सरोजनी वाना। शी वॉज द पर्सन बिहाइंड दैट फॉरेस्ट मूवमेंट। सी दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, आप कहोगे कैसे? नाउ दिस इज रिलेटेड टू द ऑयल पाम। ठीक है, देखा जाए ना, इट इज नॉट नेटिव टू इंडोनेशिया। ठीक है, लेकिन तो भी इस जगह पे उगाया जाता है, इक्वेटोरियल पेड़ वगैरह काट के। ठीक है, वो तो उगाया जाता है। तो पहली चीज यहाँ पे क्यों उगाते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में? बिकॉज इसको बहुत ज्यादा बारिश लगती है, ऑलमोस्ट 250-300 प्लस सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इट नीड्स। तो बेसिकली आपको पाम ऑयल कहाँ मिलेगा? इक्वेटोरियल रीजन्स में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल रेनफॉल, नहीं भाई, अभी तो पता है इतना ज्यादा रेनफॉल लगता है। हाईली अल्कलाइन एंड वाटर लॉक्ड सॉइल आर सुटेबल फॉर इट, गलत। इट नीड्स अ लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इट नीड्स। हाईली अल्कलाइन मतलब बेसिक कंटेंट बहुत ज्यादा, यार हाईली एसिडिक मतलब सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा, तो ये दोनों भी चीजों की जरूरत नहीं है। सो आंसर क्या है इसका? जस्ट 1 ओनली। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मैप, इट इज रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट स्टेट्स। ओके, नाउ वील क्विकली गो थ्रू द इंपॉर्टेंट स्टेट्स, नॉट ओनली वन बट मेनी। ठीक है, अभी आप ये देखिए, आई विल ओपन द मैप। नाउ फर्स्टली we'll go through the Sunda state. I hope it is visible now. पहले जंगल का नाम क्या है? It is सुमत्रा। ये सुमत्रा के जंगल, बियर ग्रिल्स का वीडियो देखा होगा आपने। ये जावा के जंगल। ठीक है, ये आपका मलेशिया। यहां से जो पैसेज वे जाता है, नैरो पैसेज वे, दैट इज अ स्ट्रेट एंड दैट इज सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, यहां पे आपका अंडमान सी है, यहां पे अंडमान सी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है जो इसको इंडोनेशिया से अलग करता है, दैट इज ग्रेट चैनल, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट चैनल। ऊपर वाला पार्ट जिसको म्यांमार से अलग करता है, दैट इज कोको चैनल। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है? डंकन पैसेज पढ़ा है। ठीक है, that is between the Little Andaman and South Andaman. And what is between Andaman Islands and Nicobar Islands? We have the 10-degree channel. Apart from all this thing, आपको यहाँ की ट्राइब्स भी पढ़नी है सारी, और यहाँ की भी सारी पढ़नी है, सेंटिनलीज, जरावा एंड ऑल। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ इसके अलावा और कोई स्टेट इंपॉर्टेंट है? यस। Can you see this Gulf of Aden near Horn of Africa? Last वीडियो में आपको Horn of Africa कराया था। So what's this area? This is Bab al Mandeb Strait. Okay, it connects Gulf of Aden and Red Sea. You will see ऊपर वाला part, that is Persian Gulf and Gulf of Oman. What it connects? It connects Hormuz Strait. It is your Strait of Hormuz. Apart from all this thing, which all states are important? ये दिख रहा है आपको ब्लैक सी? चलो चलो ब्लैक सी पे जाते हैं। ये रहा ब्लैक सी। ये कौन सा है? एजोव सी। इन दोनों के बीच पे कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ कर्च।
ब्लैक सी से नीचे जो सी है ये वाला, दिस इज मरमरा सी। इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? इस्तांबुल स्ट्रेट। इस्तांबुल स्ट्रेट। इस्तांबुल स्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, यहां पे एक स्ट्रेट हो गया। सो ये सारे थे इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा और कोई स्टेट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है? यस, अभी सारे स्टेट्स तो मैं कवर नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट जो न्यूज में तो करा देता हूं। दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस साइड क्या आपका? अटलांटिक। इस साइड क्या है? मेडिटेरेनियन। ठीक है, इटली और एक क्रोएशिया, इसके बीच में कौन सा सी है? दिस इज एड्रियाटिक सी। ये भी याद करो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से एक हवा आती है, बोरा विंड, कोल्ड विंड आती है। ग्रीस और इटली के बीच में कौन सी सी है? दोनों के रिश्ते कैसे लोहे जैसे मजबूत है। इट इज आयोनियन सी। ग्रीस और टर्की का झगड़ा एजिस से चल रहा है, सो इट इज योर एजियन सी। तो इजी याद करना कि एजिस से झगड़ा चल रहा है, तो इस वे में ये चीजें चल रही है। Now, what will be the answer of this statement? Sunda state sometimes seen in the news. It separates. What it separates, बच्चों? Sumatra and Malaysia. That is option C. Now go for the next question. Next question is related to the Sahel region. If you see the Sahel region, अब एक्चुअली साहेल रीजन है क्या? ऊपर वाला पार्ट क्या है? सहारा डेजर्ट। नीचे आपको यहां पे क्या मिलेगा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। उसके ऊपर क्या मिलेगा? सवानास वाला रीजन, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के ऊपर क्या मिलेगा? सेमी एरिड रीजन। तो साहेल रीजन क्या एक्चुअली में आपका? सेमी एरिड रीजन। अब एक्चुअली में डेजर्ट्स आगे फैले ना, इसलिए द प्लान इज बीन इंप्लीमेंटेड कि पूरे साहेल रीजन में हम क्या कर देंगे? एक ग्रीन ग्रास की बेल्ट लगा देंगे, एक छोटी सी, ऑब्वियसली बड़ी सी, ठीक है, ताकि डेजर्ट्स आगे तक एक्सपांड ना करें। सो ऑब्वियसली कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इफ यू विल सी हियर, इट विल बी मॉरिटानिया, नाइजर, छड, सूडान एंड एरिट्रिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहां से आपका साहेल बेल्ट जाता है। मॉरिटानी, माली, नाइजर, छड, सूडान एंड एरिट्रिया। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, यहां से एक विंड आती है, कोई उसका नाम बता सकता है? लोकल विंड आती है, कमेंट बॉक्स में। इट इज डॉक्टर विंड। कौन सी विंड आती है? डॉक्टर विंड। ठीक है, इधर से यूरोप की तरफ एक विंड जाती है एंड इट ब्रिंग्स अ रेड बाथ, एकदम लाल कलर की बारिश करती है। ठीक है, उस विंड का नाम क्या है? सिरोको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट विंड से जो आपको, डॉक्टर विंड का दूसरा नाम क्या है आपका? हरमेटन विंड। हरमेटन विंड। ठीक है, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is related to the mountain passes. Now in mountain passes it is being asked which of the following passes connects India and China? It is Lipu Lake. Yes, where is Lipu Lake? It is in Uttarakhand. Where is Shipkila? Shipkila से एक important river भी आती है इंडिया में, that is सतलुज river आती है. ठीक है, ट्रांसबाउंडरी रिवर. ये आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में. तो इसका आंसर है 1 and 3. ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं. सी है, अभी आपके जो बाकी पासेस थे, इफ यू सी रोहतांग पास, देपसा पास, ये दोनों कुल्लू को किससे, मनाली को किससे करते हैं कनेक्ट? दे कनेक्ट इट टू दी स्पीति. ठीक है, यहां पे अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है, आप पढ़ लेना अच्छे से. और स्पीति को लद्दाख से कौन करता है? आपका बारालाचला पास. एंड हियर इज योर शिपकिला पास. और इधर कौन सा आपका? इधर नीचे वाला साइड, दिस इज योर नीति पास. ये नीति पास से आपकी जो मानसरोवर की यात्रा जाती है ना, कैलाश पर्वत के लिए मानसरोवर की यात्रा, वो नीति पास से ही जाती है. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज रिलेटेड टू द तेजस एयरक्राफ्ट. इट इज अ लाइट वेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया. सो ये एयरक्राफ्ट हम एक हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को बेचने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? मलेशिया.
कहाँ गया मलेशिया? ऑप्शन सी. व्हाट वी आर सेलिंग टू फिलीपींस? फिलीपींस को हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं. तो ये पता होना चाहिए आपके डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग. So these were the important current affairs for your upcoming examination. So for the next CDS and next NDA, also for the next CAPF and the CSC, we are going to cover the entire syllabus. So be with us, do subscribe and like to our channel. Thank you so much.